This is Chichogi, a small village located at the top of a mountain in Kullu. This is one of the few villages in Himachal that have retained their centuries-old style of constructing shelters. These humble-looking abodes made of stone, mud and wood are called Kathkuni in Himachal Pradesh. Kathkuni structures were popular in the region because they are environmentally friendly, keep the cold out, and can survive earthquakes due to their high tensile strength. Kathkuni is made of two words, Kath meaning wood and Kuni meaning corner. While Kangra and Spiti regions abound in houses made of mud and stone, Kathkuni houses are native to this middle Himalayan belt, which includes Kullu, Manali, Chamba, Shimla and some parts of Uttarakhand. Kathkuni is structurally different from conventional building methods. Instead of vertical columns, it is built on horizontal beams. Through crisscross bracings, an entire wooden structure is constructed. Even the joineries are made of wood. The weight of tightly packed stones provides stability to the structure while the wooden beams provide flexibility. Slate tiles are used for roofing. Their weight presses the entire structure downwards and adds further to its stability. At the time of an earthquake, a Kathkuni structure might shake but is less likely to collapse. काठकुनी घर की सबसे बड़ी अहमियत यही है, फ़ायदा जिसको बोलेंगे, कि भूकंप जैसी चीज़ें जब होती थी तो इसमें जो है काठकुनी का जो मकान है, काठकुनी का जो रूम बना हुआ है वो फटता नहीं था। भले ही पूरा घर टेढ़ा हो जाएगा मगर उसका कोई भी रूम फटेगा नहीं। Winters in Himachal are harsh and unforgiving. During this time, concrete houses become extremely cold and need expensive heating arrangements. But Kathkuni houses provide excellent heat insulation. Their thick double walls help retain heat and mud plaster allows free movement of air. 24 घंटे जो घर जो है कंक्रीट का वो ठंडा होगा। जो काठकुना है ना, आप दिन को बैठो रात को बैठो कभी आपको खराबी नहीं होगी। और मिट्टी की लिपाई सबसे अच्छा है, ठंड कभी नहीं लगेगी। आप नंगे पांव से चलो, चाप बिल्कुल नंगे होकर बैठो, ठंड नहीं लगेगी। Kathkuni structures are slowly vanishing in Himachal Pradesh. This is due to the rapid urbanization of the Himalayan region and easy availability of cheap alternatives like concrete. ये साउथ वेस्ट है, यहाँ मतलब इस साइड से एंट्री होती है तो फिर बंदा इधर कोई ना कोई मास्टर बेडरूम। Rahul Bhushan, a Himachali local and alumnus of CEPT, is trying to bring back the glory of Kathkuni structures. He runs an organization called North in Naggar, a small town in the Kullu Valley of Himachal Pradesh. North promotes local craftsmanship and preserves the ancient building traditions of the state. आर्किटेक्चर में विद इन फर्स्ट 3-4 years ऑफ माई बैचलर्स कोई इतना एक ऐसा सेट टारगेट नहीं था काठकुनी के ऊपर, या फिर ऐसा भी नहीं था आई वांटेड टू मेक डायनेमिक आर्किटेक्चर। ज़ाहा हदीद, थॉमस हेदरविक सब देख रहे थे, वो हमारा एक होता है लाइक आई वाज काइंड ऑफ फीलिंग कि चलो कुछ वैसा करेंगे। एंड माय पेरेंट्स वो लाइक यार कुछ ऐसी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाएगा, बट वो उसमें कभी घुसे ही नहीं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। तो आर्किटेक्चर में मेरा ऐसा मतलब वो माइंड ही शिफ्ट हो गया था कि जॉब तो मैं शायद कर ही नहीं सकता था कभी भी। And for the reason that I was not fitting into that architecture world, I was not fitting into making that tall buildings. Somehow अभी आज भी अगर मैं डिज़ाइन करने बैठूँ मैं नहीं डिज़ाइन कर सकता वो सब कुछ। At the end यही रियलाइजेशन हुआ कि I can do justice to my homeland only. अगर मैं मान लो अगर if I go somewhere else मेरे को वहाँ का नहीं पता यार, वहाँ का कल्चर नहीं पता, वहाँ के लोगों की हैबिट्स नहीं पता, तो मैं वहाँ जाके कुछ शायद नहीं कर पाता। मेरे को यहाँ आके वो जो एक अपने आप एक जिसको कहते हैं ना पुश मिल गया, वो यहाँ आके वापस मिला। एंड फॉर दैट आई हैड टू लीव
होम, मतलब मैं यहाँ से निकला तभी रियलाइजेशन हुई कि यार हमारे पास क्या है। तो मैं वापस आया नगर में, जैसे भी मेरा बना नगर में, मैंने आके अपना सेट स्टार्टअप कर वहाँ पे हो गया, मेरे को एक अच्छा स्टार्ट मिला। धीरे धीरे ओवर दिस टाइम जब से मैंने नॉर्थ स्टार्ट किया, मेरे को बहुत अच्छे से, मतलब काफ़ी सही लोग मेरे साथ आके मिले, एंड आउट ऑफ नोवेयर, मतलब ऐसा भी नहीं था कि वी वर एक्सपेक्टिंग समबडी और नॉट, बट पीपल स्टार्टेड कमिंग इन। वी बेसिकली काइंड ऑफ केम टुगेदर एट एन आइडियोलॉजी लेवल। North in One Life line is inspiring a fulfilling way of living, you know. And then comes a second layer where, you know, we are taking the past, we are working in present and like doing something for the future. It is about sustainable development as well. And we are fostering creativity, we are fostering artistic collaborations in this context where we are mixing it with our culture and context. Kathkuni structures are largely made by hand by the local residents with the help of other villagers. An experienced artisan known as Tavu leads the construction process. These artisans have acquired the knowledge of constructing with wood and stone over generations. लोग जो है सब इकट्ठा होकर जाते थे जंगल में, जैसे पेड़, जैसे चरान करना, फिर वे ढुलान करना, लोग इकट्ठा होकर हेल्प करते थे, फ्री में हेल्प करते थे, वो सिर्फ खाना देना उनके लिए। फिर हमारा जो माहौल है पहले का, ताकतवर लोग थे सारे जितने भी है, सब लोग जो मिल के सब जो है इस काम को करते थे। फिर आके जैसे कि जो हम बोलते था हुई घर बनाने वाला, काटकुने बनाने वाला, वो आते थे, फिर वो बनाते थे उन घरों को। 20, 25, 30 साल पहले ना, कम से कम मैं बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी करने वाला साल लग जाती थी इसके लिए। इसका मटेरियल कभी जैसे कि इसके स्लेट नहीं थी होते, इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा, लकड़ी कम होती थी, पत्थर कम होते थे, तब लगता था लंबा टाइम। हाँ, निकालने की भी दिक्कत होती थी ना, औजार नहीं थे मिलते। जैसे देखो ये जितने भी लकड़ी नहीं लगी हो, देखो ये जंगल में देखो है छोटी छोटी, तो ये चीज़ें एक एक ढूंढ के लानी, जंगल में जाना बिल्कुल सीधी चाहिए, तब ये काटनी, तब लानी है, कई दिन लगते थे इनमें। अभी जो है, अभी तो सब कुछ औजार है, आजकल बिजली से करो, कुछ भी करो, बने बनाए औजार मिलते, फटोफट निकालो। So one of the projects that I would want to talk about is this project in Jana. These people wanted to build like again like tourism industry है, तो cottage मतलब basically they wanted to create a hotel. So but then we got to know that they already have a existing Kathkuni house, which now basically it's abandoned. They have not been using it. They used to live there. What we saw as a potential there was to go and do some analysis of that house first, of what we can reclaim from it. And Kathkuni mein acha, it's all like a Lego thing. So you can actually dismantle and you can like reuse that material again. So a lot of it, I think almost 40 to 45% of the material is from there then, and that's how also I think आज के कॉन्टेक्स्ट में हम वो काटकुनी घर वापस बना पाएँ, because we got like half of the material from already existing building, but we were able to reuse it. It's because it was made with a very conscious mindset, क्योंकि वो टेक्निक ही ऐसा है कि you know you can extract from it even if it's like 100 years later वो बर्बाद भी हो चुका है, तो भी तुम उसमें से निकाल पाओ। यहाँ पे 8-8 महीने बर्फ़ ही रहती थी, मतलब अगर थोड़ा पुराने टाइम में चले जाओ, जबकि ये काटकुनी शैली है, तो जो नीड थी दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग शेल्टर। तो उस टाइम पे उस क्लाइमेट को रिस्पॉन्स करने के लिए ना ये आर्किटेक्चर बना। आज की डेट में हमारा क्या है एम, उस चीज़ को समझो पर करंट नीड्स में, करंट कॉन्टेक्स्ट में उसको बिठाओ भी। हमको काटकुनी में बिल्कुल वैसा नहीं करना है, हमारे को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, धज्जी दीवारी लगा सकते हैं, गारा पत्थर यूज़ कर सकते हैं। बैम्बू में दुनिया भर में रेवोल्यूशन चली है, वाई नॉट वी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट विद बैम्बू बीम्स एंड लाइक काइंड ऑफ सी इफ दैट काइंड ऑफ टेक्निक ऑफ हॉरिजॉन्टल लेइंग ऑफ बीम्स कैन बी वर्कड आउट विद बैम्बू एज वेल। चीप मटीरियल है, वेरी फास्ट ग्रोइंग है, तो हम लकड़ी से थोड़ा भार उठा पाएंगे। According to North,
The cost and time required for constructing Kathkuni houses can be reduced by replacing wood with other sustainable and cheap materials like bamboo and hempcrete. Kathkuni architecture should be preserved and revived for an environmentally sustainable Himachal. राइट नाउ इज़ द राइट टाइम, बिकॉज अगर इस जनरेशन में हमने वो लूज़ कर दिया तो हमारे वो जो बिल्कुल अभी बुज़ुर्ग हैं ना, अगर उनकी नॉलेज को अगर डॉक्यूमेंट नहीं करा, अगर उनको किसी भी वे में इधर इन कंटेंट, इधर इन फॉर्म, इधर इन प्रोसेसेस, वी हैव टू डॉक्यूमेंट दैट एंड लर्न दैट. एंड अभी अगर वो लोग निकल गए तो जो पिछली जनरेशन रहेगी ना, दे वर इन द ट्रांजिशन फेज, तो उनको रीज़न नहीं पता होगा. लाइक लेट्स से काटकुनी का घर बनाना आता तो होगा, पर उनको ये नहीं पता कि उसकी वैल्यू है क्या आखिर में. वैसे ही अगर क्राफ्ट में वो मेटल बीटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, नरेटिव्स में वो कार्विंग बनाएंगे, पर वो उस कार्विंग का क्या मतलब था, वो सांप ही की कार्विंग क्यों बनाई ऐसे, या वो पेड़ फूल पौधे, क्या शो क्या हो रही थी, स्टोरी क्या थी उसकी. नो तो एंड हिमाचली पीपल आर लाइक स्टोरी टेलर्स, यू नो, लाइक उन्होंने अपने हर चीज़ में उन्होंने बातें करने का शौक़ है, तो उन्होंने क्राफ्ट में बहुत स्टोरियाँ बताई है. अगर वो स्टोरीज़, वो पुरानी कहावतें वो मिस हो जाएंगी, उनमें हमारा ना विजडम था. If Kathkuni architecture and its artisans fade away into history, a deep knowledge of the mountains and how to live in them will also disappear.